टिश्यू में बेटा सबसे पहले plant tissue में we talk about the plant tissue. We in the last class we learned how the cellular hierarchy in the plants and animals differ. कैसे भी एक दूसरे से अलग है. In tissue they don't have organ system, but we animal have organ system. ठीक है, हमारे पास क्या है, organ system है, उनके पास organ system नहीं है. तो that's the main difference between plants and animals. And that difference is huge. ये बहुत बड़ा difference है. अब आपके पहले बताओ, क्या प्लांट टिश्यू जो चैप्टर में टॉपिक है, क्या वो हो चुका है? इज इट डन? That's really nice. So we can move very fast with that. Or did you get the worksheet also? Today's worksheet? Okay, you got the worksheet. That's also nice. So it become very easy for me. So who can tell me? ठीक है, क्योंकि आपने कर लिया है, we will move accordingly that. ठीक है, सबसे जो लास्ट क्वेश्चन है, come to the last question. Directly come to the last question. Yes. Last question tabular वाला जो है, tabular form question. Come to the tabular form. Tell me tissue which helps in floating in aquatic plants. Can you name that tissue? Yes. Can you name that tissue that helps in floating? That plant can float. So you must have seen many plants. They have big leaves. ठीक है, and they float. वो float करते हैं on water. ठीक है, water surface पे they float. How come they float? कैसे float करते हैं? What they have? कौन सा टिश्यू होता है that helps them to float? Parenchyma. Which parenchyma? Yes, you are right. It's parenchyma. But parenchyma depend upon what it is doing, what function it is doing. It is further classified. So which parenchyma you are talking about? कौन सा parenchyma की बात कर रहे हो? बताओ. अगर someone is floating, अगर हम float कर रहे हैं, हम जैकेट पहनते हैं ना जब हम जाते हैं बोटिंग करने और कोई वाटर एक्टिविटी में जा रहे हैं, we wear life jackets. लाइफ जैकेट्स के अंदर क्या होता है? यस, लाइफ जैकेट पहनी. किस किसने लाइफ जैकेट्स पहनी हुई है? यस, मैनी ऑफ यू, है ना, वाटर एक्टिविटीज की होगी. सो इन दैट वाटर और लाइफ जैकेट व्हाट दे हैव? एयर, है ना, एयर भरी होती है. तो दैट्स व्हाई, क्यों भरी होती है? एयर इज लाइटर देन वाटर इन सम हाउ. ठीक है, कोई केस ऐसा होता है कि अगर हम बोट से गिर जाते हैं या सम मिस हैपनिंग हैपन, सो इन दैट केस आप डूबो ना, क्योंकि उस फ्लोटी की वजह से, उसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी ऊपर रहेगी वाटर से. सेम हियर, इसके पास भी एयर फिल्ड टिश्यूज हैं. दोज आर कॉल्ड parenchyma. Write down, it is called parenchyma, and that is one of parenchyma. Write down parenchyma. ठीक है, parenchyma जो है water air filled है इसमें. ठीक है, that's why these type of plants can easily float on water surface. ठीक है, coming to the second question. Tissue which transports water and minerals. Which tissue transport waters and minerals? कौन ट्रांसपोर्ट करता है बेटा? ये तो आप बहुत छोटी क्लास से, आई थिंक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इन क्लास 7 यू हैव स्टडीड दिस. हाँ, yes. Which tissue helps in water transport and mineral transport? Yes, who will tell me beta? Yes, I think I have to call only, then you will call. Yes, Ashveer Kaur, rule number 7. Ashveer Kaur. Yes beta. So which tissue helps in transportation of water and mineral? Xylem. That's nice. Sit down. So xylem is what? Xylem is vascular tissue. ठीक है, xylems come under vascular tissue. Last time we have studied about meristematic tissues, simple tissues. We were left with the only complex. ठीक है, so when we talk about complex, we have two tissues system. One is xylem and second is phloem. Second is phloem. Okay, xylem and phloem.
नाउ जाइलम इज फर्दर, बेटा इसको बना लो, नोट डाउन दिस, सब अपनी कॉपी उठाओ, नोटबुक, एंड मेक दिस, सब करो एवरीवन, क्योंकि सबको लगता है आता है, लेकिन जब पूछा जाएगा कुछ इसमें से डिटेल में, यू आर नॉट एबल टू आंसर इट. सो फर्स्ट आ जाता है व्हाट वी हैव इन द जाइलम, वी हैव सीव ट्यूब्स, we have sieve tubes, we have tracheates, then we have parenchyma, xylem parenchyma, and here we have fibers. Out of these four, only the parenchyma is living one, it's the living one, rest all are dead. Why they are dead? Because they have to carry water opposite direction from the gravity, क्योंकि पानी कहाँ है, सॉइल में है, so they have to transport water in upward direction, and it is always in upward direction, in upward direction, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ही जा रहा है, so this is called unidirection, it is always unidirectional, it is always unidirectional. ठीक है. Fibers also helps in providing strength, it provides strength. Now come to the phloem. अब phloem के parts कौन बता सकता है? Who can tell me that? अब देखो मैंने एक चीज जानबूझ के गलत लिखी है, लेट्स सी, आपने करा हुआ है तो कौन मुझे बता सकता है, जाइलम में सभी चीजें ठीक है, इज इट करेक्ट? Who can correct me? I want to see how many of you are very attentive. आपके सामने है, आपके सामने है, मैम ने कुछ लिखा है, एंड आई वांट टू नो हु कैन पिक दैट मिस्टेक. किस बच्चे ने बताया? खड़ा हो जाए, जल्दी से बताए. यस, दैट्स राइट. सो सीव ट्यूब कहां पर होता है? इट्स इन फ्लोएम, नॉट इन जाइलम. तो यहां पर क्या आता है? वेसल्स. दैट्स राइट. अब जिसने लिखा था एज सच, उसको करेक्ट करो, ताकि याद रहे कि आपने जब कहते हैं ना नकल के लिए भी अक्ल चाहिए, सो दैट अप्लाइज हियर. ठीक है. सो sieve tubes are here, and sieve tubes, they don't have nucleus, इनके पास न्यूक्लियस नहीं है, but still they are considered living, they are living. क्या है ये? living है. इसके साथ along with the sieve tubes they have companion cells, as name says, companion cells will give them company. ठीक है. Now that company makes them living because they have nucleus. They have nucleus, okay, and they are living. So whatever the requirement of sieve tube is fulfilled by companion cells. So if we say we have, this is a sieve tube, ये हमारे पास sieve tube है, they don't have nucleus. So इसी sieve tube के साथ let's position companion cells. Companion cells ऐसे position है. So these are the companion cells, and these are sieve tubes. और इसके यहाँ पर एक साइड में फाइबर्स होते हैं, यहाँ पर फाइबर्स that provide strength, fibers, and fibers again are dead. So in this phloem only the one component that is dead, it is fiber. So fiber is dead. Again it is also having one more cell
that is parenchyma, and parenchyma is living. पैरेन्काइमा का रोल क्या होता है? स्टोर करना. क्या स्टोर करेगा? फूड. इसको बना लो बेटा. It is the easiest way to remember all these. किस कौन कौन कहता है? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री दैट फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड का, इट्स बाई डायरेक्शनल? हाउ मेनी ऑफ अग्री विद मी दैट इट इज बाई डायरेक्शनल? चलो ठीक है, दैट्स नाइस, यू आर करेक्ट. नाउ हु कैन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाई डायरेक्शनल? बाई डायरेक्शनल का क्या मतलब है? You are right. Everyone is right here. Bidirectional. But I want to know what do you understand by the term bidirectional? Like here we have mentioned unidirectional. यहाँ हमने लिखा xylem में unidirectional. Here we are saying phloem में क्या है? Bidirectional. Who can tell me what do you understand by this term bidirectional? Bidirectional से क्या मतलब है? Yes, who can tell me? Any of you? Yes, कोई बेटा एक आ जाओ. हर्षदीप कौर आ जाओ, बताओ जल्दी से खड़े होके. हर्षदीप कौर. ओके, जैस्मिन कौर. यस बेटा. आई थिंक इज इट डन? शैल आई मूव अहेड? ओके, so yes beta, tell me what do you understand by that phloem transport is bidirectional? दो डायरेक्शन में. अब वो कौन सी दो डायरेक्शन है? यस योर बाय मतलब हम यही कहते हैं दो डायरेक्शन. बट व्हाट डज इट मीन? अगर हम जाइलम को कहते हैं यूनि डायरेक्शन, पता लगता है कि नीचे से ऊपर ही जाएगा. वन डायरेक्शन है, ठीक है, ऊपर से नीचे तो नहीं आएगा पानी, क्योंकि ओनली रूट्स कैन एब्सॉर्ब वाटर, है ना. अब सिट डाउन. अब सारे बच्चे समझो, बिकॉज एवरीवन knows bidirectional means two way, but how come in the phloem? So let's say this is a plant, ठीक है, ये इसकी roots हैं, roots are here, and during spring season, let's take the example of spring season, when our plant or tree is lush green, पूरा पत्तों से भरा हुआ है, it's lush green, ठीक है. Many leaves are here, बहुत सारे पत्ते हैं इसके अंदर. So what happen in that case? It can easily photosynthesize, है ना. जितने green leaves हैं उतना ज्यादा photosynthesis होगा. It can make their food, है ना. अपना जो है sun की help से photosynthesis से बहुत सारा खाना बना लेगा. Now it has plenty of food. So जिसके पास खाना होता है in plants, we called it source. It is a source, and rest of the parts of the plant, that is root, stem, flower, anything except leaves, are sink. Sink means they are deficient. Let's say अभी हम root का example लेते हैं. It's deficient or it needs food. उसको खाना चाहिए. So food will travel from here to here through phloem. वो हमें पता है, phloem से खाना इधर को गया. Let's take another scenario. एक और सिनेरियो लेते हैं. जब पतझड़ आता है, ऑटम सीजन, ठीक है, ड्यूरिंग ऑटम सीजन व्हाट हैपन इन दैट केस? नाउ ट्री इज हियर, उसकी बार्क वहीं पर है, इट हैज ब्रांचेस आल्सो, ठीक है, उसकी ब्रांचेस भी हैं, बट नो लीव्स. बट प्लांट इज नॉट डेड. प्लांट इज नॉट डेड, क्योंकि फिर से स्प्रिंग सीजन आएगा, यू विल सी द सेम सिनेरियो. आपको फिर से वही चीज देखने को मिलेगी. Now plant has no leaves, still live. Then how it is getting food? कैसे खाना मिल रहा है उसे? क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो रही, क्योंकि ग्रीन नहीं है कुछ. So how it is getting food? कोई बता सकता है? Where food gets stored? बताओ. अच्छा चलो,
इसको थोड़ा सा डेली लाइफ से कनेक्ट करते हैं। घर में बहुत सारा खाना बन गया, आज बहुत ज्यादा बन गया, 4 लोगों की जगह हमारा जो 8 लोगों या 10 लोगों का खाना बन गया गलती से। सो व्हाट विल यू डू? विल यू कीप इट इन अ फ्रिज और यस और नो? रखोगे रेफ्रिजरेटर में रखोगे? यस। अब नेक्स्ट डे आपके घर में गैस की सप्लाई बंद होगी या इलेक्ट्रिसिटी भी सब बंद हो गया। नाउ यू हैव नो ऑप्शन कि आप सिर्फ फ्रिज से खाना खाओ। विल यू हैव इट? यू विल हैव इट और यस और नो? क्योंकि दैट इज द ओनली सोर्स, यू विल गेट फूड फ्रॉम देयर ओनली। क्योंकि अब खाना बन नहीं सकता, आप पका नहीं सकते, यू हैव एक्स्ट्रा फूड दैट इज इन अ फ्रिज, सो यू कैन हैव इट, है ना, उसको आप खा सकते हो। सेम ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन, इट प्रिपेयर्स, इट मेक्स लॉट ऑफ फूड, बहुत खाना बनाता है, फिर उसको स्टोर करता है डिफरेंट पार्ट्स में। सपोज कर लो रूट्स में स्टोर कर लिया, रूट ने बहुत खाना स्टोर करके स्टार्च रखा हुआ है। किस लिए रखा है? फॉर दिस टाइम के लिए। हमने फ्रिज में खाना किस लिए रखा है? कल खा लेंगे, फ्राई करके खा लेंगे, ठीक है, डोंट वेस्ट इट। वो भी अपना खाना वेस्ट नहीं कर रहा, प्लांट भी अपना खाना वेस्ट नहीं कर रहा, उसको लेटर ऑन स्टोर करके रखता है जब कोई ऐसी सर्कमस्टांस आए, सो इट कैन हैव इट। सो ड्यूरिंग ऑटम इट इज यूजिंग फूड फ्रॉम द रूट्स। और अगर हम कहें अर्ली स्प्रिंग, ड्यूरिंग अर्ली स्प्रिंग अभी छोटे छोटे पत्ते आने शुरू हुए हैं, स्मॉल लीव्स, यंग लीव्स, वेरी स्मॉल, दे ऑल्सो कैन नॉट प्रिपेयर इनफ फूड। वो भी ज्यादा खाना नहीं बना सकते पूरे पेड़ के लिए। सो नाउ फूड इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, जो यंग लीव्स हैं उसकी तरफ जा रहे हैं। सो नाउ हियर यू कैन सी रूट्स बिकम source and early leaves or these stems become sink. So this transport is called bidirectional. So depending upon where food sources, food travel. अगर फूड लीव्स के पास है तो नीचे को जा रहा है, अगर रूट्स के पास है इट विल गो इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज ए बाई डायरेक्शनल, ठीक है। बाय डायरेक्शनल मतलब डिपेंड्स अपॉन कौन सा सीजन है, कितने लीव्स हैं, दैट्स हाउ फूड विल ट्रेवल, ठीक है। सो दैट इज एक्चुअली हैपन इन दैट केस। अब नेक्स्ट थिंग, एक डायग्राम बनाऊंगी एंड आई वांट एवरीवन, बिफोर डायग्राम लेट मी शो यू वन मोर थिंग। ये सब बनाओ, टिश्यू सिस्टम ऑफ प्लांट, टिश्यू सिस्टम प्लांट का ये टेबल है, फ्लो चार्ट है, इसको बनाओ पहले। फर्स्ट इज एपिडर्मल और वी कैन से प्रोटेक्टिव, ठीक है। पहले सब इसको बनाओ, देन वी विल मूव अहेड। यस, फर्स्ट इज एपिडर्मल, सेकंड इज ग्राउंड एंड लास्ट इज वेस्कुलर। In this we have parenchyma and collenchyma. These two tissues जो हमने पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है। What is the role of this epidermal tissue system? Its role is provide protection, क्योंकि बाहर की तरफ होता है तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। मैं इसको डायग्रामेटिकली भी बताऊंगी बट फर्स्टली नोट इट डाउन, पहले इसको एक बार नोट कर लो। Then we have ground tissue. In ground tissue we have only parenchyma. Its role is to store food, to store food, खाने को स्टोर करता है। Vascular tissue, vascular tissue में we have many tissues. We have parenchyma, we have sclerenchyma,
we have vascular tissues. तो इट्स मेनली रोल इज टू ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इसका मेनली काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, वाटर, of food, water, minerals. Its role is only this. ठीक है. So depending upon their role, their position respectively. ठीक है. पहले इसको समझ लो. एपिडर्मल किस लिए चाहिए हमें? प्रोटेक्शन, सबसे ऊपर. उसके नीचे खाने को स्टोर करने के लिए, खाना स्टोर हो गया. उसके नीचे हमें चाहिए जो खाना लेके आएगा तभी तो स्टोर होएगा. ठीक है, तो उसके नीचे हमें वेस्कुलर टिश्यूज चाहिए. इज इट डन? नाउ लेट्स मूव टू द डायग्राम. सो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में भी गिवन है सनफ्लावर का. ठीक है, सो वी आर टेकिंग दैट ओनली. ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ, ट्रांसवर्स सेक्शन जिसको हम टीएस लिखते हैं, टीएस ऑफ sunflower stem. Sunflower stem. Who can tell me what do you understand by this term transverse? Transverse क्या होता है? सिर्फ रट्टा लगाया हुआ है. Transverse क्या होता है? Yes, I can see a girl is saying yes. That's right. That's right. कौन कौन खीरा खाता है? कुकुम्बर कौन कौन खाता है? सभी खाते होंगे, है ना. इसमें क्या क्वेश्चन ही गलत है मैम का ना. अभी खासकर इस सीजन में तो नमक मिर्ची नींबू लगा के खाओ, है ना. सो व्हेन वी लेट्स, पहले मैं आपको कुकुम्बर बताती हूँ, जिसको नहीं पता तो वो समझे. सो लेट्स सी, दिस इज आवर खीरा. इफ यू कट इट लाइक दिस, ठीक है, क्या मिलेगा आपको? ऐसे स्लाइस मिलेगी. सो दीज स्लाइस आर योर ट्रांसवर्स सेक्शन. ये जो पतली पतली स्लाइस होती हैं, जो आप ऐसे कट 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 करते हो, राउंड शेप में आती है, दैट इज योर ट्रांसवर्स सेक्शन. ठीक है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है. कई जगह ट्रांसवर्स पूछा होता है, कई बार लॉन्गिट्यूडनल पूछा होता है. सो यू शुड अंडरस्टैंड ट्रांसवर्स मतलब बीच से जो पतली स्लाइस होती है, जो आपको पूरा सरफेस दिखाती है, दैट इज योर ट्रांसवर्स. अब इसको थोड़ा सा हम स्टेम पे ले आते हैं. आपको खीरा तो बता ही दिया, तो अपने आप काटोगे तो याद रहेगा ट्रांसवर्स काट रहे हो. ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ स्टेम. सपोज दिस इज आवर स्टेम. इसको हमने कट किया, व्हाट वी गेट, हमें ये स्ट्रक्चर मिला. अब हमने पूरा नहीं पढ़ना, पूरा भी वैसे मिलेगा जैसा है. सो हम इतना सा स्ट्रक्चर, लेट्स स्टडी अबाउट दिस स्ट्रक्चर. अब ये स्ट्रक्चर को जब पढ़ने लगे, पहले हम लेते हैं यंग स्टेम. फर्स्टली वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ यंग स्टेम. अभी नई स्टेम है. ठीक है, इन द यंग स्टेम व्हाट इज द आउटर पार्ट? आउटर पार्ट अभी हमने पढ़ा कौन सा होता है. जो टिश्यू सबसे बाहर होते हैं वो कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? एपिडर्मल. सो अगेन हियर वी हैव, सब बेटा इसको ड्रॉ करो. अपने आप हाथ से किया हुआ ड्रॉ स्ट्रक्चर कभी भूलता नहीं है. यू विल नॉट फॉरगेट दिस स्ट्रक्चर. ठीक है, अपने आप बनाओगे तो याद भी रहेगा, नहीं तो जैसे बुक में बना हुआ है वैसे ही याद रहेगा. ठीक है, सो हियर वी हैव, एंड इन दिस लेयर बिकॉज एयर का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है. एंड एज यू नो एपिडर्मस में क्या होता है? स्टोमेटा. So this is a stomata. This is our epidermal layer. Epidermal layer, ठीक है, epidermal tissue you can say. ठीक है, now इसके ऊपर एक लेयर बनाते हैं जिसकी वजह से लीव्स, इफ यू टच लीव्स,
वो हमें थोड़ा स्लिपरी और स्मूथ नजर आते हैं, दैट इज क्यूटिकल, दैट इज क्यूटिकल। इसको साथ साथ ऐसे बनाओ बेटा, क्योंकि हम अब बना रहे पेज, यूज ट्राई टू यूज कलरफुल पेन पेंसिल्स इफ यू हैव, अगर नहीं है पेंसिल के डिफरेंट शेड्स करके करना, ठीक है। अलग अलग कलर से बनाओगे, अलग अलग शेडिंग दोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू, जब आप एग्जाम के टाइम ऐसे नोटबुक उठाओगे तो आपको याद आ जाएगा। अदरवाइज ब्लू पेन से ही करते रहोगे या ब्लैक पेन से, तो वही दिखता रहेगा कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट। नाउ below this we have cells, इन सेल्स के बीच में जो स्पेस है उसको थोड़ा थिक कर लो। कौन से सेल होंगे बेटा जिनके बीच में ऐसे जो इंटर सेलुलर स्पेस है वहां पर थिकनिंग होती है? विच सेल्स आर दीज? यस, हु कैन टेल मी? कौन से सेल्स है जिसमें इंटरसेलुलर स्पेसिंग जो है वहां पर थिकनिंग होती है? वी हैव 3 cells ना, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. So out of these, which cell is this? Sorry, tissue. कौन सा है ये? Collenchyma. Collenchyma. So this is collenchyma. This is collenchyma. और इसको hypodermis भी कहते हैं. It is also called hypodermis. So make it like this only. Now below this we have hexagonal shaped cells with no spacing, with no spacing. So can you name these cells? With no spacing and they are having thick wall. Yes, ये देखो ये thick wall है. These are thick wall. So what are these tissues? ये क्या है? जिसमें कोई स्पेसिंग नहीं है और दे आर थिक, और इनकी जो वॉल है इसमें किसका डेपोजिशन है? लिग्निन का. सो व्हाट आर दीज? यस, दीज आर स्क्लेरेनकाइमा. दीज आर स्क्लेरेनकाइमा. अभी तक जो हमने ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, अभी जो हमने यहां से यहां तक का जो बनाया है, लेट्स कॉल इट, इसको नाम दे देते हैं, ठीक है. सो दिस वन जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. नाउ कॉलेनकाइमा, और यहाँ पर सॉरी स्क्लेरेनकाइमा भी उसके नीचे खैर अभी रह रहा है एक स्ट्रक्चर, उसको करते हैं, देन आई विल टेल यू, ठीक है. इतना हो गया सबका? इज इट डन? यस, यस बेटा. अच्छा, इसमें यहाँ जो रह गया था बेटा, एक यहाँ पर इसको लिखो पेरेनकाइमा. इसका नाम लिखना भूल गई. दिस इज पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है. इसको ऐसे लिखो. अब इसी से from here only make it like this. Upper one is phloem and this is xylem. Phloem and this is xylem. और ये जो आपको यहाँ पर सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है,
इफ यू लुक हेयर, जो हमने काटा था पीस, उसमें ये ऐसे नजर आएगा, लाइक रिंग. दिस जाइलम एंड फ्लोएम अरेंजमेंट लुक्स लाइक दिस, जो अभी यहां पर आपको दिख रहा है इन द स्टेम. ठीक है. नाउ दिस सिस्टम, यहां तक ये जो सिस्टम था, दिस इज योर ग्राउंड टिश्यू, दिस इज योर वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम. So this is how tissues are arranged in a young stem. I'm talking about young stem. What happen in the mature stem now? अगर हमारा जो पेड़ मेच्योर हो जाता है तब क्या चेंजेस होते हैं? So we will see in this only. इसी में करके देखते हैं. First change is cuticle epidermal layer. क्या हो जाएगा ये? यहां पर हमारा एक डेड सेल की लेयर बनेगी, डेड सेल लेयर in mature. Now we are talking about mature stem. ठीक है. in mature stem जहां पर हमारे पास ये जो डेड सेल की लेयर है, so it has a deposition. It has a deposition of suberin, wax like substance. suberin का जो है deposition है इसमें, and this layer is called cork. This is cork. This layer is called cork. Just below this, it's a one more layer that is called cork cambium. Cork cambium. Just below this layer, cork cambium. Then it has as usual ground tissue, जो अभी हमने पढ़ा है ground tissues आ गया. Now यहां पर वेस्कुलर टिश्यू एज सच नहीं आता. कैसे आता है? सो बेसिकली यहां पर आएगा आपके पास, हियर यू विल गेट सेकेंडरी फ्लोएम. व्हाट वी हैव? सेकेंडरी फ्लोएम. नाउ हियर इज वन मोर कैम्बियम लेयर, दैट इज वेस्कुलर कैम्बियम. Vascular cambium. Below vascular cambium we have secondary xylem. So this is the change you can see when we move from young stem to mature stem. जब young stem से आप mature stem में जाओगे, so you will see that जो टिश्यू लेयर है, जो ग्राउंड टिश्यू है यंग स्टेम में, ठीक है, उसमें से जो टिश्यू लेयर है दैट विल कन्वर्ट इनटू कॉर्क कैम्बियम. और यहां से इफ वी टॉक अबाउट सेकेंडरी जाइलम से लेकर कॉर्क तक, दिस इज कॉल्ड बार्क. इसको हम कहते हैं बार्क. दिस इज बार्क. सो बार्क इज जो भी वेस्कुलर कैम्बियम से ऊपर की लेयर्स हैं, दैट इज ए बार्क. ठीक है. अब इसका रोल कहां आता है? लेट्स से दिस इज ए स्टेम और बार्क. ठीक है. ये हमारे पास जो पेड़ है उसका ट्रंक है. एंड व्हाट वी डिड, ये देखो इसकी यहां पर हमने डी बार्किंग की है. वी हैव डन डी बार्किंग, मतलब कुछ लेयर्स हमने इसकी हटा दी है. So when we are talking about debarking, you can see, ये देखो debarking, जहां पर मैंने मोटा नहीं किया हुआ, debarking. When we have done debarking, it means we have removed what part? अगर हमने किसी पेड़ की debarking की है, bark हटा दिया है, तो उसमें से कौन सा वेस्कुलर टिश्यू रिमूव हुआ है? देखो अपने डायग्राम में, bark में कौन सा वेस्कुलर टिश्यू आ रहा है? सी, बार्क में कौन सा टिश्यू है? जल्दी बताओ कौन सा वेस्कुलर टिश्यू है? And this question, this is related to your 31st question in the worksheet.
बार्क में जो बार्क है, वी हैव जस्ट स्टडी, बार्क में आपका जो वेस्कुलर कैम्बियम है उससे ऊपर का जितना पार्ट है, अबव द वेस्कुलर कैम्बियम, इट इज कंसीडर्ड बार्क. इससे ऊपर क्या था? फ्लोएम. यस, सेकेंडरी फ्लोएम वाज देयर. यस, अगर डी बार्किंग हुई है इसका मतलब फ्लोएम की लेयर रिमूव हुई है. सो इट मीन्स क्या चीज इफेक्ट हुई होगी? कमिंग टू द 31st क्वेश्चन. सब 31st क्वेश्चन निकालो इसके साथ. In a forest, it was observed that one of the trees was severely debarked by an elephant to meet its food requirements. As the bark is rich source of nutrients, bark comprises all tissue outside xylem and vascular cambium. Now, first question है, which function of the tree is or are hampered by debarking? कौन सा फंक्शन जो है इफेक्ट होगा अगर debarking हुई है? Yes, debarking means phloem has removed. What is the role of phloem? Yes, what's the role of phloem? So the thing that is affected here, transportation of food. तो इसका आ जाएगा transportation of food. Now coming to the second question of same question. Which plant tissue would be affected by further damage to tree trunk even after debarking? तो कौन सा टिश्यू इफेक्ट होगा अगर हम डीबार्किंग करते जाएं? हमारा सेकेंडरी फ्लोएम था यहाँ पर, ठीक है. वी हैव स्टडीड सेकेंडरी फ्लोएम के बाद क्या था? वेस्कुलर कैम्बियम. एंड वेस्कुलर कैम्बियम के बाद कौन सा टिश्यू था बेटा? विच टिश्यू इज प्रेजेंट हियर? वेस्कुलर कैम्बियम के नीचे कौन सा टिश्यू है? डायग्राम देखो, लुक, अपने जो भी डायग्राम बनाए उसमें देखो. इट इज सेकेंडरी जाइलम. इट इज सेकेंडरी जाइलम. ठीक है, सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट था. सो विच विल बी इफेक्टेड? आंसर आएगा सेकेंडरी जाइलम. लिखो जाइलम टिश्यू. ठीक है, तो मैंने आपको डिटेल में वेस्कुलर टिश्यूज करवाए आज. ठीक है, फटाफट वर्कशीट के क्वेश्चन लेते हैं. आई विल कॉल बाय रोल नंबर. रोल नंबर 1 प्रेजेंट है? Yes. First question, how does division of labor among tissues benefit a multicellular organism? Option D. Yes. Different tissues perform specialized function efficiently. That's nice. Sit down, beta. Coming to the second question, second roll number, come forward. अपने आप अपने क्वेश्चन के साथ तैयार हो सभी. Animals and plants have different types of tissues because they D option. Yes. So differ in growth pattern, differ in their mode. Growth pattern हमारा उनका different है. Mode of nutrition, we are heterotrophic, they are autotrophic. Cellular flexibility, our cell doesn't have cell walls, so our cells are bit flexible. ठीक है, so that's nice, beta. Sit down. Third roll number. Meristematic tissues in plants are localized and dividing cells. That's nice. Sit down. Coming to the fourth. Yes, fourth roll number. Which of the following correctly distinguishes meristematic tissue from permanent tissues in plants? Option? Yes, all the above. So, yes, sit down, beta. Everyone, pay attention. Beta, middle row, what's going on? बैठ जाओ बेटा. Sit down. So, answer is, it's D. Coming to the fifth question, fifth roll number. Who is fifth roll number? जल्दी आओ.
यस, फिफ्थ रोल नंबर कौन है? फिफ्थ रोल नंबर कौन है? हु इज फिफ्थ रोल नंबर? एब्सेंट है। ओके, सिक्स रोल नंबर, सिक्स रोल नंबर कम अप विद द फिफ्थ क्वेश्चन. यस. cells of apical meristem lack vacuoles. ये हमने लास्ट टाइम किया था. उनके पास वैक्यूल नहीं होता. Why they don't have vacuoles? A option. You are saying option A. Okay, sit down बेटा, sit down. अब मुझे अभी बाकी बच्चे अभी वर्कशीट डिस्ट्रीब्यूट मत करो. लीव इट. अभी सुनो पहले. क्वेश्चन नंबर 5 का कितने बच्चे जो है कहते हैं ऑप्शन ए है? शो मी द वन फिंगर फॉर ए. वन फिंगर. इफ यू अग्री द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5 इज 1. ए, शो मी वन फिंगर. If B, show me two finger. If C, show me three finger. If D, show me the four finger. Let me see. So corner row girls, all are right. All are correct. Corner row girls, yes. Boys, now you are coming to the point. But ऐसे देख के नहीं करना कि उसने कह दिया तो मैं भी वही कहूंगा. वो नहीं है. वैक्यूल का रोल क्या है? वैक्यूल प्लांट सेल में व्हाट्स द पर्पस ऑफ हैविंग वैक्यूल? इतना बड़ा जो है वाटर बैग, वाटर बलून जैसा स्ट्रक्चर क्यों प्रेजेंट है? सो इट इज प्रेजेंट टू स्टोर फूड एंड जो वेस्ट है उसको रखने के लिए. बट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर डिवाइडिंग फास्ट. वो बहुत जल्दी डिवाइड कर रहे हैं. जो खाना है उसको फटाफट खा ले रहे हैं. दे डोंट स्टोरिंग द फूड, दे डोंट स्टोर द फूड. वो खाने को स्टोर नहीं कर रहे और इसी वजह से दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग वेस्ट ऑल्सो. सो आंसर आ जाएगा इसका, दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, क्योंकि वो एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं. सो दैट्स द आंसर. आई थिंक योर नेक्स्ट क्लास इज स्टार्टेड. Which class is this? Science? Hindi. Okay. So let's take one more question. 6 question लेते हैं then end it. ठीक है, क्योंकि अभी मेरिस्टेमेटिक के ऊपर है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू divides repeatedly. What property of their cells allows them to do this? तो कौन सी प्रॉपर्टी है जो उनको जो है डिवाइड करने में हेल्प करती है? व्हाई दे आर डिवाइडिंग? व्हाट दे हैव स्पेशल इन देम? सो रोल नंबर आ जाओ 7 रोल नंबर कम अप विद द क्वेश्चन नंबर 6. बेटा बाकी सब शोर नहीं, नो नॉइस. यस बेटा, व्हाट्स द आंसर ऑफ दिस? सी ऑप्शन. दे आर थिन वॉल्ड. मोटे नहीं होते, उनकी वॉल्स पतली होती हैं. ठीक है. देन डेंस साइटोप्लाज्म होता है और लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है. सो द आंसर इज इट्स सी. ठीक है. सो एवरीवन, so we have done till 6. बाकी क्वेश्चन try to do by yourself. In the next class we will solve all these questions. ठीक है. मगर आप सॉल्व करके आओगे तो it will be easy. We can move ahead with the animal tissue then. ठीक है. Sir is there in your class? Okay, जब तक सर नहीं आते let's do the question then. हाँ, क्या करोगे बैठ के? क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना? So 7 क्वेश्चन पे आ जाओ. चलो रोल नंबर 8. चलो रोल नंबर 8 जल्दी से आओ. दिस इज द ग्राफ अनियन रूट्स. ठीक है, अनियन रूट्स का ग्राफ दे रखा है. व्हाट डज द ग्राफ बी रिप्रेजेंट? सो एज यू कैन सी, एक में रूट जो ए है, ए में ग्रोथ जा रही है, लेकिन बी में क्या हो रहा है? आफ्टर सर्टेन टाइम इट्स डिक्लाइनिंग. तो व्हाट इट इज टेलिंग? जल्दी बताओ आंसर. व्हाट्स द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 रोल नंबर 8? रोल नंबर 8 इज वेयर? प्रेजेंट है. रोल नंबर 8 प्रेजेंट है. चलो तो रोल नंबर 9 आओ. फटाफट आओ बेटा. व्हाई यू आर वेस्टिंग टाइम? कम. यस. इसका क्या आंसर होगा बेटा? अगर इसकी ग्रोथ कुछ टाइम बाद रूट टिप काटने पे बंद हो रही है तो व्हाट इट इज शोइंग? रूट ग्रोथ डिक्रीजेस ड्यू टू रिमूवल ऑफ रूट हेयर. रूट हेयर तो हमने किया नहीं है. रूट टिप
रूट टिप जो है उसको रिमूव करने से। सो आंसर इज इट्स ए। ठीक है, क्योंकि टिप्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर मोस्टली प्रेजेंट इन टिप्स। ठीक है, सो दैट्स नाइस। चलो, नाउ आई थिंक सर हैज कम, तो चलो स्टार्ट योर अनदर क्लास। बाय एवरीवन।